अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल हमने पढ़ा था definition of physics and beauty of physics. Today we will discuss about the branches of physics. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे branches of physics. So physics is a huge subject. Which covers all the many different topics or different subjects. Is called a physics. बेटा physics वो subject है जिसमें हम बहुत से subjects को क्या करते हैं, study. Like branches of physics is that branches of physics. Physics is a huge subject which covers all the different topics. Is called a physics. In our physics there are three branches. First branch, that is the classical physics. बच्चों दूसरा जो इसमें आता है that is quantum physics. And third one, that is the relativity. Physics are of three branches. First, classical branch, that is the classical physics. Second one, that is quantum physics. And third one, that is relativity. We will discuss in detail about the classical physics, quantum physics and relativity. So we will first discuss about the classical physics. बच्चों क्लासिकल फिजिक्स का जो फादर है सर आइजैक न्यूटन. कौन था? सर आइजैक न्यूटन was the father of classical physics. In classical physics we study, बेटा क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? Newton's laws of motion. First, in classical physics we study about the Newton's laws of motion. In classical physics we study about the universal law of gravitation. Third one, motion of planets. Falling of objects towards the earth. तो इसमें बच्चों हम ये पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो पहला इसमें जो पॉइंट आता है, इसका जो फादर था सर आइजैक न्यूटन. बेटा हम इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. पहले हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद टाइप्स देखते हैं मोशन के, एंड इसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो इसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ सकते हैं. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half times at square, v square minus u square is equal to 2as. These are the three equations of motion which are first given by the Galileo and first explained by the Sir Isaac Newton. So in classical physics we study about the Newton's laws of motion. Next one is in classical physics we study about the universal law of gravitation. In classical physics we study about the motion of planets. And the fourth one is falling of any object towards the earth. We all discuss it in classical physics. This is the classical physics. इतना ही नहीं किया था बे बच्चों न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स पे. न्यूटन also major role in calculus. बेटा जो सर आइजैक न्यूटन था इसने कैलकुलस पे भी बहुत काम किया है, जिसमें क्या हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, integration and differentiation. Sir Isaac Newton gave us a more
important concept in physics, that is calculus. And calculus is the most powerful tool in mathematics. अगर हम मैथ की बात करेंगे, ये एक फेमस टूल है, द मोस्ट टूल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन मैथमेटिक्स, दैट इज कैलकुलस। बच्चों, इस कैलकुलस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम इसके अंदर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, पढ़ते हैं। जैसे हमें किसी फिगर का एरिया, करो का एरिया निकालना होगा, ठीक है, तो वी विल ऑल डिस्कस इन कैलकुलस। सो कैलकुलस इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। सो न्यूटन ने ये भी काम किया था कैलकुलस पे, ठीक है। इसको फादर ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है एंड फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को। ओके, दिस इज टोटल अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स। बच्चों, इतना ही नहीं किया था कि सर आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स और कैलकुलस पे काम किया था, नहीं, ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, बच्चों ऑप्टिक्स आपको 12th के अंदर पढ़ना है, ऑप्टिक्स। ओके, तो इसमें भी क्या किया था न्यूटन ने? इस पे भी काम किया था, जैसे कि रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म्स, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म पढ़ाया था हमें किसने? सर आइजैक न्यूटन ने ये कंसेप्ट दिया था ऑप्टिक्स का, जिसमें हम रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म्स पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म्स। ओके, सो न्यूटन also work in the optics, astrophysics and the cosmology. Okay, this is total about the classical physics. Okay, now we will discuss about scope and excitement of physics. This is the most important topic, most important. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। बेटा, अगर इस फिजिक्स का स्कोप देखा जाएगा, ठीक है, देयर आर टू, वन दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक, and microscopic is also called as a classical physics. This is also called as classical physics. बेटा, माइक्रोस्कोपी लेवल, इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो क्या करते हैं हम बेटा इसके अंदर हम मोशन पढ़ेंगे, क्लास 9 11th में हम पढ़ेंगे मोशन। ओके, तो मोशन पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार मोशन पढ़ेंगे, व्हील रोटेशन पढ़ेंगे बेटा, इसमें कार मोशन पढ़ेंगे। इसके अंदर मोशन में जो 11th में आपको पढ़ना है, इसमें हम व्हील रोटेशन पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन, जहाज को कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों साउंड वेव पढ़ेंगे, इसके अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन, क्या पढ़ेंगे? फ्लोटेशन एटसेट्रा। बेटा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इन physics there are two, one is microscopic and next is the microscopic, and microscopic is also called as a classical physics. तो क्या करेंगे इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बच्चों? हम पढ़ेंगे मोशन पढ़ेंगे ऑफ ए कार, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे, व्हील रोटेशन पढ़ेंगे, इसमें हम साउंड पढ़ेंगे, साउंड वेव्स पढ़ेंगे, फ्लोटेशन एटसेट्रा। दिस इज टोटल अबाउट इन मोशन। दूसरा जो इसके अंदर बचा आता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? इसके अंदर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे,
इसके अंदर बचे हम पढ़ेंगे हीट पढ़ेंगे। इन थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट। ओके, इसमें बचे हम पढ़ेंगे टाइम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हीट इंजन पढ़ेंगे एटसेट्रा। इन थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी स्टडी अबाउट द हीट, वी स्टडी अबाउट द हीट इंजन। दिस इज ऑल वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बच्चों आपको कहाँ पे पढ़ना है 11th में। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लॉज पढ़ते हैं, हीट पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे। Now the third one, that is electromagnetism. Electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम बचे पढ़ेंगे करंट, AC DC करंट पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों हम AC और DC करंट पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे, मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे एटसेट्रा। In electromagnetism we study about the current, alternating current, direct current, मैग्नेटिक्स के बारे में एटसेट्रा। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों 11th जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक Microscopic, this is also called as modern physics. Modern physics. In microscopic level, we study about the X-ray. We study about the electron, nature of electron, etc. Nature of electron. X-ray, electron, nature of electron, we will all discuss in modern physics or in microscopic level. Okay. Now the third one is that is the relativity. That is relativity. 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 A relativity concept was first given by the Sir Albert Einstein. Sir Albert Einstein. Einstein gave us the special and general theory of relativity. Special and general theory of relativity. General theory of relativity. General theory of relativity. In 1905, Einstein published a paper, Special and General Theory of Relativity. तो बच्चों 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें क्या लिखा था, स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. And stated that the speed of light was determined by the two constants. That is speed of light. Speed of light. तो 1905 में क्या किया था बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसपे उन्होंने क्या लिखा था, स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो क्या कहा था उन्होंने, ये कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इसको हम डिटरमाइन करते हैं दो कॉन्स्टेंट से. was determined by the two constants. One is the mu naught, next that is the epsilon naught. Mu naught and epsilon naught.
तो in 1905 Einstein published a paper known as Special and General Theory of Relativity, stated that the speed of light was determined by the two constants, one is the mu naught and mu epsilon naught, and states that the speed of light is constant 2, speed of light is constant 2 and may not change in the frame of reference. That the speed of light is constant and may not change in the frame of reference, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरा नाम बच्चे हम बोलते हैं दिस ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन सिस्टम को पहले किसने दिया था? इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द रेनी डेस्क्रेटर्स। So in 1905 Einstein published a paper known Special and General Theory of Relativity. In Special General Theory of Relativity he stated that the speed of light was determined by the two constants. जो भी स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है इसको हम दो कॉन्स्टेंट में क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन। वन इज दैट इज द म्यू नॉट एंड नेक्स्ट वन दैट इज एप्सिलॉन नॉट, एंड stated that the speed of light is constant and may not change in the frame of reference. तो क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था जो स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो किसी रेफरेंस पॉइंट या किसी ओरिजिन पे इसका कोई चेंज नहीं आता है। तो मैथमेटिकली वी स्टेट वी राइट, तो मैथमेटिकली बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज v 1 divided by v square is equal to mu naught that is epsilon naught. So speed of light is constant. Speed of light is determined by the two constant. One is the mu naught, next one is epsilon naught. The speed of light is constant and may not change in any frame of reference. तो speed of light बेटा जो है constant है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो speed of light जो है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या कहा था? मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं 1 divided by v square is equal to mu naught divided by epsilon naught. तो v इज इक्वल टू, तो इसको स्क्वायर बाय बच्चे किस में आएगा? रूट में 1 divided by mu naught epsilon naught. दिस इज द फॉर्मूला, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू √1 divided by mu naught epsilon naught. दिस वाज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला पोस्टुलेट यही था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बच्चा पहला जो इसका पोस्टुलेट आता है वो यही आता है। क्या आता है? कि स्पीड ऑफ लाइट वाज डिटरमाइंड बाय द टू कांस्टेंट्स म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट चेंज इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज v इज इक्वल टू √1 divided by mu naught epsilon naught. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पहला पोस्टुलेट आता है बेटा वो यही आता है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड रिमेंबर one thing, Einstein gave us the mass energy equation, that is the famous equation E is equal to mc square. This is the most powerful equation in physics, E is equal to mc square. तो इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बच्चा नोबेल प्राइज नहीं मिला था। आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिमेंबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। So this is total about the special and general theory of relativity. तो फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ। Now the second postulate is physics. Laws of the physics are same for all observers. Law of physics are same for the all observers who are moving at the same velocity. Einstein was the founder of quantum mechanics. तो क्या कहा था आइंस्टाइन ने? इन्होंने कहा कि जो सन से रेज आती है, स्पीड जो लाइट आती है सन से कहाँ तक? हमारी पृथ्वी अर्थ, हमारी धरती पे जो यहाँ पे पड़ती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये एनर्जी आती है सन से हमारी पृथ्वी तक, ये आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, तो आइंस्टाइन से दैट लाइट कम फ्रॉम सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दिस पैकेट्स आर कॉल्ड एज
photons. So what is light? Light is nothing. It is an energy packet, and physics demonstrates that light is a photon. Light is a photon. तो फिजिक्स ने यही demonstrate किया कि light क्या है? Light is nothing but it is a photon. And what is photon? Photon is the energy packet. Energy packets or quanta of energy. Quanta of energy. This was the second postulate of the special theory of relativity. Okay, so the second postulate, Einstein stated that the light comes from sun to the earth in the form of packets, and physics demonstrate these packets that light is a photon. Light is a photon. Okay, ये objective question आता है, light is demonstrated as a dash, that is photon, that is photon. And what are photons? Photons क्या होता है? Photons are the energy packets. Photons are energy packets, or we say that photons are the quanta of energy. Quanta of energy. This is total about the relativity. This is total about the relativity. तो इसमें से बचा और थोड़ा आता है, दैट इज Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Uncertainty principle. तो वो जो आपको 11th में पढ़ना है आगे, Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पार्टिकल है. Let us assume this is a particle. This is particle. Heisenberg states that it is impossible for this particle that we can particle exert both position and exact momentum at the same time. Okay. तो क्या कहा था? Heisenberg ने कहा था कि इस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम एक टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को एग्जैक्ट पोजीशन और इसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल अ पार्टिकल दैट वी कैन बोथ इट्स कैलकुलेट बाय द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको भी फेल किया था. किसको? Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. तो Heisenberg का यही कहना है कि एक पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम नहीं. वेयर इज अ मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू mv. Okay, this is momentum. This is product of mass into velocity. Product of mass into velocity. This is a momentum. This is momentum. So this is total about the classical quantum as well as relativity. कैलकुलस. तो कैलकुलस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है बच्चों? पहले अगर हम देखेंगे डिजाइनर ऑफ ब्रिजेस, जो भी पुल बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे वायल ब्रिज बनाया गया है, सेम एज द हावड़ा ब्रिज. ओके, तो वो जो हमारा ब्रिज है दैट इज इन द फॉर्म कर्व शक्ल में है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं यूज इंजीनियर्स? कैलकुलस. तो कैलकुलस इज द मेजर रोल इन विच वी डिजाइन द ब्रिजेस. ओके, जैसे कि एग्जांपल है हमारे वायल ब्रिज की, तो सेम एज द हावड़ा ब्रिज. ओके, तो इसको बनाने के लिए इंजीनियर किसका यूज करते हैं? कैलकुलस. तो कैलकुलस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट यूज्ड इन द मैथमेटिक्स बट इट इज आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में कहाँ पे यूज होता है? इन केस ऑफ डीएनए. जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम्स, ओके, इनको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? डीएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के हमारे पास किसका यूज होता है? कैलकुलस का. किसका होता है? कैलकुलस का. ओके, तो रोबोट्स, जो भी हम रोबोट्स बनाते हैं, रोबोट्स को बनाने के लिए हम किसका पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स. क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स. दैट इज n into m.
Number of rows and number of columns. Number of rows, we use the matrix when we manufactured robots. Okay, this is total about the matrix.